नमस्कार दोस्तों। मैं संजू गंजीर आप सबका अपने YouTube चैनल कंसेप्चुअलिस्ट इंजीनियरिंग पे स्वागत करता हूं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये भी ऑर्थोग्राफिक पोजीशन से रिलेटेड है। सो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। सो वी नीड जस्ट आई let's before start I just quick revised of I want to revise the or about the projection method that I previously says that we are using first angle or third angle projection method. So more time I make a video for including first angle projection method. So today we will learn about the orthographic projection using third angle projection method. So here we start third angle projection method. And you all know the basics of third angle projection method. So here in the third angle projection method I just tell a little. So in third angle projection method, front view is always drawn below and top view is always drawn above, and the side view, when you see the object from the left side, then it will be drawn to the left of the front view. So here this is the side of your left hand side view, and similarly when you are seeing the object from the right hand side like this, this is your right hand side, so you are drawn towards the right hand side of the front view. So this is the basics. So let's start the point to point and step by step procedure to draw a perfect orthographic projection. Okay, so this is your three-dimensional view. Why I can say that is a three-dimensional view? Because you clearly see that is a direction and this is your front view. Then we all know front view, in the front view we are clearly seeing the length and the height. Okay, what because like this, when you see this from here, when you see this object from here, then you just appear, you have got some, I will show you with using the pencil. So you are clearly seeing the part of this particular object. So this is your 1, this is your 2, and including that is your 3 also. So half portion of this 3, and this is your 4, and this one is your 5. So firstly we need to draw this in the front view. Okay, so we start with the front view. So let's start with the front view. So in this case we firstly discuss about the third angle projection method. So इस केस में क्या होगा, जो फ्रंट व्यू होगा आपका, देख लीजिए फ्रंट व्यू जो होगा वो कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा, ये तो पता है। तो मैं इसको यहाँ पर भी रख सकता हूँ, यहाँ पर भी रख सकता हूँ, नो डाउट अबाउट दिस। बट one more common thing is that before ticking or before marking the front view side, we are completely known about the side view. So here this is your side view. This object is clearly seen from there. So this is your right hand side. Okay, this is your left hand, this is right hand. So right hand side is side view is drawn to the right of the front view. So this part, this side is marked as a right hand side view. So here we write the side view. Okay, right now right hand side view. Right now this is your front view. Okay, this is your front view and this is your top view. Okay, so first we start the marking of the putting of the dimension. So for each and every view we have a certain dimension. So हम देखते हैं कौन कौन सा dimension होगा यहाँ पर. So देखिए when we see the object from the front, then we have a length and we have a height.
So what about the length? So clearly usually seen here. So something change in the dimension. So this is your 36, not about, because I just twice the every length because for better clearance of this वीडियो. सो ये जो आपका 36 रहेगा, ये 36 रहेगा, यहाँ पर मैंने 12 लिख दिया था. सो आपको जस्ट डायमेंशन को डबल कर देनी है. ये ओके था, बाकी सब ओके. ओके, और ये जो है 16 है, 16 दैट मीन्स 16. ओके, सो चलिए स्टार्ट करेंगे. तो लेंथ जो होगा आपका होगा 40 प्लस 36 प्लस 36 दैट इज 112. ओके, 112 mm, that means 112 mm. And what about the height? So you easily seen that 32 is the top height and 16 is the lower height. So 16 plus 32, so ये जो होगा आपका हो जाएगा 48. ओके, सो लेंथ हो गया यहाँ पर. सो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा लेंथ को ड्रॉ करना. वैसे ही राइट हैंड साइड से जब देखेंगे तो आपको दिखेगा क्या, विड्थ. ये सो ये जो विड्थ होगा वो तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है. कितना दिखाई दे रहा है, 64. और हाइट और दिखाई देगी. सो हाइट तो सेम होगा 48. और जब इसको आप टॉप से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देता है बताओ, विड्थ और लेंथ. सो विड्थ अगेन हो जाएगा 64 और लेंथ हो जाएगी आपकी 112 mm. ओके, सो नो डाउट अबाउट द डायमेंशन. सो वी स्टार्ट मेकिंग द डायमेंशन हियर. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्टली वी नीड टू ड्रॉ a box for the front view. So we are now using firstly 2H pencil like this. So here what is the maximum length? So this side shows your length. So 112, that means 112 mm like this. Now we draw a line a line to this. Now draw a line starting from here and drawn below from here. And what about the dimension? So this is your height and this is your about 48. So यहाँ से आपको नीचे 48 ड्रॉ करनी पड़ेगी. सो चलिए, और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए. ओके, सो चलिए, ये आपका 48 हो गया. और आपको ऐसे बॉक्स शेप दे देना है इसको. सो चलिए, ये आपका एक लेआउट हो गया. अब इसी के अंदर आपको फ्रंट व्यू दिखाई देगा. तो चलिए, मैंने आपको टिक किया है 1 2 3 4 और ये समथिंग. यहाँ पर एक और चीज है 3 लाइट. यहाँ पर थोड़ा सा देखिए जो टिल्ट हुआ है, ये भी यहाँ का पोर्शन है. सो इस तरीके से दिखेगा. तो आप इधर को क्लियर देख पा रहे हैं, सेम वैसे ही वहां पर भी बनाना है. तो चलिए स्टार्ट करेंगे. सो मैंने बॉक्स बना दिया. अब आप इसको सामने से देखेंगे तो ये आपका बेसिक हो गया. सो चलिए, पहले ये तो टोटल लेंथ मैंने मार्क कर दिया है. सो चलिए, कितना है ये मैंने आपको मार्क करके बता दिया था. जो था आपका 112. ये देखो आपको दिख रहा है. सो ये आपको क्लियर दिख रहा है सामने से, ये देखिए. चलिए, उसके बाद देखिए आपको ये हाइट दिख रही है. सब में हाइट है, सब बॉक्स में हाइट है. तो हाइट कितनी है, 16. तो सबसे पहले मैं 16 की जो है हाइट बना देता हूँ. सबके लिए कॉमन हाइट है. ये देखिए, ये मैंने मार्क कर दिया ऐसे. अब जो देखिए, आप जब इसको सामने से देख रहे हैं तो सब में बॉक्स दिख रहा है. देखिए 4 के अंदर भी बॉक्स है, ये लेंथ, ये हाइट, सब में एक बॉक्स है. सो इस वजह से ये जो है पैरेलल जाएगी इसके पूरे यहाँ तक. ये देखिए लाइक दिस. और ये आप ज्वाइन करेंगे सबसे पहले ऐसे. अब आप देख रहे हैं सब में डिविजन बने हुए. तो कहाँ पर है बताइए, लेंथ कितना कितना है. आपको तो क्लियरली दिख रहा है कितना, 40. इधर का 36. तो काउंट करने स्टार्ट करेंगे लास्ट साइड से. चलिए, कोई दिक्कत नहीं है. सबसे पहले 36 टिक कर लेंगे. सो ये दैट इज 36. इसको आप क्या कर लेंगे, इसी के पैरेलल ऊपर ले जाएंगे इस बॉक्स तक. ओके, उसके बाद कितना है, मिडिल वाला 40. सो वी नीड टू ड्रॉ टिक 40 mm लाइन लाइक दिस एंड एक्सटेंड दिस वर्टिकली लाइक दिस. ओके, सो ये आपका 36 हो गया क्लियर. सो अब क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको फिर से बताया है कि इसका कुछ पोर्शन दिखाई देगा. तो ये जो था टोटल जो 36 था, बट देखिए जो टॉप कॉर्नर जो पोस्ट है वो आपको दिखाई दे रहा है 24. ये देखिए 24 इस साइड से भी, तो इस साइड से भी वो 24 ही होगा, दोनों साइड से. सो ये भी यहाँ से आपका 24 mm है. सो कैसे करेंगे इसको, चाहे तो आप टिक कर सकते हैं, या तो फिर आप टॉप व्यू बनाओगे तो आप बना सकते हैं. ठीक है, तो छोड़ दो उसको अभी फिलहाल के लिए टॉप व्यू के लिए. ठीक है, तो आपको दिखाई देगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है. तो आप क्लियर करेंगे तो कर सकते हैं यहाँ से. चलिए मैं कर देता हूँ. सो 24 आप यहाँ से फिर से टिक करेंगे ऐसे, और पैरेलल इसको इसी के देखिए ऐसे आपको ड्रॉ करनी है लाइक दिस. सेम आपको करना है इधर से भी, बैकवर्ड साइड से कितना 24. तो ये 20 और ये 24, और इसको भी आपको ऐसे टिक करना है. सो ये आपका स्टार्टिंग नीचे का व्यू दिखाई दे दिया. अब चलिए, अब ये देखते हैं कितना है. सो हाइट, आपको ये जो हाइट होगी ना, ये आपको टिल्ट नहीं दिखाई देगी. वो आपको टिल्ट जो हाइट होगी वो यहाँ से दिखाई देगी. यहाँ से आपको फ्लैट दिखाई देगी सीधे वर्टिकल, और वो कितना होगा 32. सो ये रिमेनिंग हो तो 32 है ही, बिकॉज मैंने 16 ही ड्रॉ किया है. सो बाकी का जो 32 है वो ये है. अब ये कहाँ से दिखाई देगा, तो हमको क्लियर पता है ये जो 40 है उसके मिडिल पे है.
सो हम एक काम कर सकते हैं, देखिए जो 40 है इसका मिडिल ले लेते हैं, जैसे 20 में मैंने टिक कर दिया यहाँ पर, ये देखिए। अब यहाँ से इसकी विड्थ कितनी है, ये 16 है, सो पूरा टोटल यहाँ तक 16 है। सो दिस इज योर 16 mm। सो यहाँ पर क्या करेंगे, जो 8 होगा इस साइड कर लेंगे, 8 mm इस साइड टिक कर लेंगे ऐसे। चलिए देखते हैं इसको, ये देखिए दोनों जो होगा 8 8 ये लाइक दिस, और यहाँ पर, और इसको सीधा मैं स्ट्रेट वर्टिकल ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे, ये देखिए, और इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ये देखिए ये वाला आपको अब ऐसे दिखाई देगा। सो क्लियर है। चलिए इसके लिए मैं डायमेंशन भी शो कर देता हूँ आपको जल्दी जल्दी, एक्सटेंशन लाइन बना देता हूँ, आपको तो पता चल ही जाएगा फिर। ये 1, ये चलिए नेक्स्ट जल्दी जल्दी करते जाते हैं, ये चलिए हो जाएगा, और साइड के लिए यहाँ से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं बाद में कर दूंगा आपके लिए। चलिए अब टॉप व्यू की बारी है। सो यहाँ से चलेंगे, टॉप से इसको देखने पर ये हमको ऐसे दिखाई देगा। सो यहाँ से आपको स्टार्ट करनी है। तो फिर से इसके लिए आपको क्या बनाना है, एक लेआउट बनाना है, बॉक्स, उसको मैं बॉक्स मेथड बोलता हूँ। सो आप भी जैसे है वो बना सकते हैं, और आपको इसको फिर रिमूव करना भी है, इरेज। सो चलिए फर्स्ट मैं इसको क्या कर देता हूँ भाई, इरेज कर देता हूँ। सो चलिए अब ये टोटल हुआ, ओके। अब टॉप की बारी। सो इसके लिए भी अगेन मैं एक बॉक्स बना देता हूँ। सो चलिए कोई दिक्कत नहीं। सो लेंथ कितना है, अगेन ये वाला जो साइड होगा अपना, ये जो लाइन जा रहा है ये आपका लेंथ साइड होगा, ये वाली विड्थ होगी, बिकॉज ये तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है। सो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना है, यहाँ से सीधी दिख रही है, एमडी को ऐसे रख देना है, ये देखिए इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे यहाँ तक, और ये तो आपको पता ही है यहाँ तक। सो ये हमेशा कितना ही रहेगा, 112 ही रहेगा, ये देखिए, ओके। चलिए अब 112 का जो है हम लाइन तो ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। विड्थ कितना है, 64। सो 64 ये देखिए, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देंगे। सो मैं 2 से कर रहा हूँ। सो ये जाएगा 84 ऐसे, और इसको आपको क्या करना है फिर ज्वाइन करना है लाइक दिस। सो ये आपको एक बॉक्स टाइप का दिख रहा होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे किस साइड से, जैसे भी आप कर सकते हैं। तो देखिए आपको पता चल रहा है कि जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा, व्हेन वी सी दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप, सो आपको क्या दिखाई देगा, देखिए अब आपको फिर से मैं मार्क करके बताऊंगा कुछ पोर्शंस। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सो आपको क्या दिखाई देगा, सबसे पहले ये पूरा बॉक्स 1, ये पूरा है ना, इसको मान लेते हैं 2, और इस साइड को मान लेते हैं 3। सो आपको जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाना है। ऊपर से आपको देखो ऐसे दिख रहा है तो ऐसे ही दिखेगा, बिकॉज मैंने जो आपको यहाँ पर टिक किया है, आपको विड्थ और लेंथ बस दिखाई देगा। सो आप हाइट को छोड़ देंगे। सो जैसे जैसे ये कटा मुड़ा हुआ है, जैसे जैसे साइड से ये गया हुआ है, वैसे ही आपको बनानी है। तो चलिए सो हम स्टार्ट करेंगे सीधा, ठीक है। इस साइड से देखिए आप इसको, जब ये कैसे रखाएगा, ऐसे रखाएगा ऊपर से देखने पर, तो ये जो है पूरा एक लाइन दिखाई देगा, बिकॉज मैंने बोला हाइट आपको दिखाई देगा क्या, नहीं। तो टोटल जो होगी 112 mm वो यहाँ से पूरा दिखाई देगी। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से पूरा, ये देखिए ऐसे आपको ड्रॉ करनी है सबसे पहले। अब उसके बाद देखिए ये साइड से और इस साइड से कितना आया है, सबसे पहले अंदर जो है 32 फ्रॉम ईच एंड, और हमको बिलो बनाना है उसको। सो ड्रॉ बिलो, और कितना mm होगा 32, क्योंकि ये विड्थ साइड है, देखिए 64 साइड है और ये विड्थ साइड है आपका। तो यहाँ पर ऐसे आपको टिक करना है, ये देखिए, और इतना 32। सो हाफ आपको ड्रॉ करना है। सो 10 20 30, और ये हो गया 32। सो चलिए यहाँ तक इसको टिक करेंगे ऐसे, और इसको ऐसे मार्क कर देंगे यहाँ तक, ओके। और इसको भी हमको क्या कर देंगे, ऐसे टिक करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस ऐसे, ओके। अब उसके बाद लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ से दोनों एंड पे पहुंचने के बाद ये जो है अंदर साइड कितना कितना है 24, देखिए जो ये मैंने मार्किंग किया है 1 और 3, ये दोनों को मैंने को इनसाइड बनाना है। सो कितना कितना 24। सो ये ऐसे इसको रखेंगे, ये देखिए, और यहाँ से सो चलिए उसके बाद क्या करेंगे, इस साइड से देखिए, हाँ ये दोनों साइड से 24, ये देखिए 24 मैं अंदर ले जा रहा हूँ, यहाँ से भी 15 से मैं ले जा रहा हूँ, ये 20 और ये 24। चलिए ये देखिए, या फिर आप डायरेक्ट ये देखिए, ये जो है यही तो है 24 है कि नहीं, ये भी 24 इन साइड था, ये भी है वही सेम। सो ये डायरेक्ट आप इजीली इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों लाइन को ले जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे, है ना। इसको भी आप ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप इरेज कर सकते हैं इसको। सो ये इस टाइप का यहाँ जुड़ेगा ऐसे। सो चलिए अब उसके बाद क्या हुआ है बताइए। अब देखो ये तो मैंने कर दिया, ओके ओके। अब नाउ ये जो है टोटल, ये तो टिल्ट है, हमको एंगल पता है क्या, नहीं पता है, बट ये जो होगा वो यहाँ से इस जो 40 वाली लाइन है मिडिल लाइन से, ये वो जुड़ाएगी, है ना। तो जुड़ेगी तो ये 40 वाला है आपका। सो इसको हम क्या करते हैं, देखिए बीच से इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ सबसे पहले। 40 वाला कौन सा, ये वाला, ये मिडिल वाला, ये देखिए यहाँ तक। सो 9 से 13 है, इसको हम क्या कर देते हैं, इजिली ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, ये देखिए। नाउ अब क्या करेंगे,
ये टिल्ड डायरेक्ट ज्वाइंट है, सो इसको हम इजिली ज्वाइन कर सकते हैं। सो ज्वाइन बोथ द पॉइंट विथ HB पेंसिल लाइक दिस। यहां से भी आप इसको ज्वाइन करेंगे, ये देखिए। सो ये आउटलाइन तो बन गया है, अब ये है टोटल। सो देखिए नो नीड टू वरी बिकॉज मैक्सिमम लेंथ आपको दे चुका है यहाँ पर, तो ये लिखा है 48। सो हमको ऊपर से ये वाला पोर्शन ऐसे जाके ऐसे नहीं दिखाई देगा। हाइट मैंने बोला आपको दिखाई देगा क्या, नहीं। सो डायरेक्ट आपको ये लंबाई दिखाई देगी यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी है 48 है, कोई दिक्कत नहीं। सो क्या करेंगे, देखिए ये जो आपका यही वाला पोर्शन होगा कि नहीं, यही है। तो इसको आप फिर से इसके अबाउट फिक्स कर देंगे ऐसे, देखिए, और इसको आप ऊपर तक ले जाएंगे सबसे पहले तो ऐसे, और इसको भी सीधा। सो ये हो जाएगा आपका। अब ये तो यहीं से हुआ है, ये कितना सबसे पहले 28। सो सबसे पहले मुझे 28 बनाना है बिकॉज 2 डिवीजन में दिखेगा आपको, इसका कुछ पोर्शन भी, इस 5 नंबर का कुछ पोर्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पर। तो सबसे पहले 28 तो क्लियर दिखाई देगा ऊपर से। तो चलिए यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ 15 से 28। सो ये आपका यहाँ तक, वैसे ही सेम यहाँ से भी कर देंगे, ये ऐसे, और इसको एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। सो ये देखिए क्लियर। सो ये पोर्शन आपको दिखाई दे दिया। अब जो बाकी का है वो आपको मैंने बोला ये टिल्ड है, आपको टिल्ड दिखाई देगा क्या, नहीं, बिकॉज आपको हाइट दिखाई देगी नहीं, तो ये फ्लैट दिखाई देगा। टोटल कितना है 48। सो 28 मैंने ड्रॉ किया, रिमेनिंग कितना बाकी है आपके पास 20। सो चलिए 20 हमको ड्रॉ करनी है यहाँ से। सो ये आपका 20, और इसको इधर मैं टिक कर देता हूँ इसके पैरेलल, ये देखिए, और यहाँ पर ऐसे। सो इस तरीके से आपका टॉप व्यू जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। सो अब हमको चलना है साइड व्यू की तरफ। तो ये आपका पोर्शन जो होगा साइड व्यू कहलाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगेन, कंस्ट्रक्ट अ बॉक्स। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा बताइए, यहाँ पर आपको मैंने लिख दिया है विड्थ और हाइट। सो ये जो है फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देगा, इसका विड्थ दिखाई देगा, और इस साइड इसकी क्या दिखाई देगी, फ्रंट व्यू में इसका हाइट दिखाई देगा, और टॉप से इसका विड्थ दिखाई देगा। सो चलिए हमको बॉक्स बनाना है फिर से। सो कितना कितने का है, अब हाइट तो ये वाला हाइट कितना है 48। देखिए मैंने यहाँ पर मार्क किया है, तो 48, या जस्ट इसको आप ये देखिए इस तरीके से आप इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको आप करेंगे यहाँ, ये आपको 48 मिलेगा ये, और उसके बाद ये कितना है बताइए इसका विड्थ। सो विड्थ है 64, तो ये आपको 64 दिखाई दे दिया। अब इसको आपको ज्वाइन करना है यहाँ से, और ये आपका बॉक्स कंप्लीट इस तरीके से, ओके। चलिए अब स्टार्ट करेंगे इसका कंस्ट्रक्शन। सो साइड से आपको क्या दिखाई देगा, सो लेट्स स्टार्ट। सो अब देखिए आपको नीचे साइड से ये 64 कंप्लीट दिखाई देगा नीचे लेवल पे। सो इसको मुझे HB पेंसिल से इसको कर देता हूँ डार्क डायरेक्ट, ये देखिए एक ही लाइन पे रहेगा ये आपको इस तरीके से करनी है, ओके। अब नाउ अब क्या करेंगे आप, ये हाइट कितनी है बताइए, पहले सबसे पहले 16, सेम टू सेम इसके जैसी। तो आपको इसको पूरा ले जाना है, ये देखिए ऐसे, और इसको भी आपको ज्वाइन करना है, ये देखिए ऐसे, और ये। सो बेस आपका क्लियर है, ओके। अब 64 जो है देखिए यहाँ पर, यहाँ से हमको क्या दिखाई देगा, चलिए एक सेकंड और यहाँ पर मैं कुछ टिक कर देता हूँ आपके लिए। चलिए यहाँ से हमको क्या दिखाई देगा बताइए, कौन कौन सा पोर्शन दिखाई देगा, ये 1 और ये 2, जो 3 लिखा है आपका ये वाला पोर्शन। सो ये और ये आपको क्या होगा दिखाई देगा, 4 नहीं दिखाई देगा क्योंकि 4 जो है फ्रंट से दिखाई दिया, तो साइड से नहीं देगा। तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड देखिए 32, तो रिमेनिंग भी कितना होगा 32। तो 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो बीच से मिडिल से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। सो ये जो होगा, ओके, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ये आपका 32 है, इसको आप सीधी ला सकते हैं लाइन यहाँ तक, और ये आपका जो होगा सेंटर पोर्शन होगा। सो नाप के देख लेते हैं, ये 32 यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए, ओके। सो थोड़ा सा है बिकॉज MD में जो डिफेक्ट होता है उसकी वजह से, सो इसलिए वजह से मैं इसको आपको नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, ओके। सो ये दूसरा तरीका था बॉक्स मेथड। तो चलिए ये आपका होगा, ये कंप्लीट आपका हाफ जो होगा ये ऐसे दिखाई देगा। अब चलिए अब क्या दिखाई देगा, ये जो हाइट होगी 32। अब मुझे देखना है सामने से। अब बताइए कोई चीज को जब आप मतलब यहाँ से देखना है साइड से, तो साइड से आपको क्या दिखाई देता है, मैंने बताया आपको विड्थ दिखाई देगा और हाइट दिखाई देगा, ओके है, विड्थ और हाइट। तो इसमें लेंथ दिखाई देगा क्या, नहीं। सो जो ये वाला पोर्शन है तो मेरा पूरा टोटल क्या लेंथ है, दिस इज योर ऑल लेंथ। सो हमको नो नीड टू ड्रॉ, यहाँ पर हमको ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है कभी भी इस लेंथ को। सो आपको ये लाइन नहीं दिखेगी, डायरेक्ट ये हाइट दिखेगी। सो कितनी है 32 बिकॉज ये। तो चलिए यहाँ से इसको मैं लास्ट पे स्टार्ट कर देता हूँ लाइक दिस, ये देखिए बना देता हूँ, ये ऐसे आपका बन जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा बताइए, ये यहाँ से कितना अंदर गया हुआ है 28, ओके। सो ये आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते थे ऐसे, यहीं कहीं आता, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ से आपको करके बता देता हूँ। सो 8 से स्टार्ट है, तो 7 और 6, उसके बाद ये 5 के जस्ट 2 पॉइंट आगे यहाँ पर होगा आपका, ओके। अब बताइए ये ज्वाइंट ये यहाँ तक गया हुआ है, ये आपको टिल्ड दिख रहा है। सो कितना तक है, ये 48 तक है। तो आप यहाँ से अगर इसको लाइन ड्रॉ करते हैं, करेक्ट आपका MD तो आता। सो मैं यहीं से टिक कर देता हूँ,
इस साइड से 48 करना पड़ेगा, इस साइड से क्या हुआ है। तो चलिए यहाँ से मैं स्टार्ट करके देखिए 7 से किया हूँ। सो ये 1 2 3 4 और ये यहाँ कहीं ये यहाँ पर है। अब इसको आप ज्वाइन कर देंगे दोनों को। सो ये आपका जो होगा जो साइड व्यू है, राइट हैंड साइड व्यू, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। ओके, क्लियर दिख पा रहा है आप सबको। सो ये आपका जो होगा इस तरीके से आपको बनाना है और बहुत ही सिंपल तरीका है ये, है ना। चलिए, सो और भी कोई डाउट आई होंगी अगर आपको इस पूरे व्यूज के कंस्ट्रक्शन के दौरान, है ना। सो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं और जितना भी इजी वे में हो मैं इसको समझाऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए अब यहाँ पर मैं डायमेंशन पुट कर देता हूँ। सो चलिए कितना था, एंड से स्टार्ट करेंगे। टॉप यहाँ पर है आपका। सो चलिए टॉप के लिए मैं अलग दे दूँ, टॉप के लिए साइड से ही तो पता चल सकता है। ये आपका अब कंप्लीट हुआ। सो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया है, बताया आपको। और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत सारा लाइक और कमेंट करें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, स्टे विथ मी